बोलो. Hello student, how are you? I hope you are fine. We have already discussed about the real number polynomial quadratic equation. In this video, I am going to discuss about the trigonometry. Now the question is, what is trigonometry? And it is new topic for you. Trigonometry is a branch which measure the sides of a triangle and angle of a triangle and problem based on the angle of triangles. Okay, तो मैंने क्या बताया कि ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो ट्रायंगल के साइड के मेजरमेंट के बारे में बताता है और उसके एंगल आप जानते हो, टू साइड्स मीट एट अ पॉइंट देन इट फॉर्म अ एंगल. Okay, so in class 10 we have to discuss about the right angle triangle. तो बड़ा सिंपल सा है. There are 4 topics here in NCERT: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. There are 4 topics here. So today I am going to discuss the theory and few questions regarding to 8.1 exercise. Okay, boys. So let us start. This one is the ABC triangle. ABC is a right angle triangle. Okay, angle B is 90 degree. Now there are 2 angles left, angle A and angle C. Okay, so how can we name the side of the triangles? Opposite side of 90 degree is always called hypotenuse, and opposite angle of A, opposite side of A, that is called perpendicular, and opposite side of C is called base. अब ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है. परपेंडिकुलर और बेस का डिसीजन, इस बात को ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर और बेस का डिसीजन डिपेंड करता है कि हम किस एंगल के वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं. अगर मैं एंगल ए के वैल्यू को फाइंड आउट करने वाला हूं, ठीक है, तो इसका अपोजिट साइड पी कहलाएगा. अगर हम एंगल सी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड पी कहलाएगा. तो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं. बस एक साइड फिक्स है एंड दैट इज 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा, दैट इज कॉल्ड hypotenuse. So we are clear about the 3 words: hypotenuse, perpendicular and base. And perpendicular and base का नेमिंग किस बात पर डिसाइड करेगा कि हम एंगल ए को निकाल रहे हैं या एंगल सी को निकाल रहे हैं. Okay, now there are the few terms are presented here, that is sine, cos, tan, cosec, sec and cot. These are called the trigonometrical ratio. These are called the trigonometrical ratio. Sine, sine का literal meaning कुछ नहीं होता है, SIA नहीं होता है. Sine is a meaningless word, but it is called trigonometrical ratio. As you know, trigonometrical ratio means what? Ratio का मतलब क्या होता है यार? 2 numbers के बीच के जो proportions हो गए, that is the ratios. ठीक है, तो अब sin, what is the sign? Sin is a trigonometrical ratio. तो sin theta equals to what? थीटा क्या है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है. अब ये थीटा इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं. तो अगर sin थीटा है, देन sin थीटा, अगर मैं इसको यहाँ थीटा मानता हूं तो इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस. तो आपको याद क्या करना है बच्चे कि sin थीटा इज अ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो which establish the relation between P and H. What is P? P for perpendicular, H for hypotenuse. So sin theta is equal to P by H. Cos theta, what is called? Cos theta, B by H. Tan theta, P by B. अब इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लो. अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो H और H कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? P by B. So sin theta is equal to P by B. So we have one formula here. Tan theta equals to sin theta by
cos theta. Tan theta equals to sin theta by cos theta. Sin theta is equal to P by H, cos theta is equal to B by H. H is cancel, so tan theta is equal to P by B. P by B कैसे हम लोगों को मिला? Then divided sin theta by cos theta. Now sin का opposite, ठीक है, cosec थीटा है, एंड यू कैन कॉल इट राम बलराम. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1. जब साइन है अपोजिट साइड में कौन आ गया, उसका अपोजिट कैसे वैल्यू हो रहा है भाई, अब इसको भी समझ लो. यहां है साइन थीटा P बाई H, यहां क्या है कॉस थीटा, जस्ट देखो H बाई P. अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू है P बाई H और कॉसेक थीटा है H बाई P. देन H कैंसल, PP कैंसल, व्हाट वी आर गेटिंग हियर 1. ठीक है, अगेन कॉस थीटा और सेक थीटा में रिलेशन है, कॉस B बाई H है और सेक B बाई H है. तो अगर मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो H कैंसल, B कैंसल, देन अगेन वी आर गेटिंग 1. टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा है, तो P बाई B एंड B बाई P, जस्ट उल्टा. तो याद करने में बहुत टेंशन नहीं है मेरे भाई. साइन कॉस का याद कर लिए, साइन क्या है P बाई H, कॉस क्या है B बाई H, दोनों को डिवाइड किए तो क्या निकल गया टैन थीटा. यहां से एक फॉर्मूला हम लोगों ने मेजर कर लिया, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. फिर हमने क्या याद किया, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, यानी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा. अगेन यहाँ देखो कॉस थीटा और सेक थीटा, तो यहाँ पे एक हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड टैन थीटा equals to 1 by cot theta, and reverse is also possible here. That means cosec theta is equal to 1 by sin theta, sec theta is equal to 1 by cos theta, cot theta is equal to 1 by tan theta. That's why these are the important. आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके इन सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लोगे. ओके, सो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट now. I am going to discuss, there are few questions which is related to 8.1 exercise, and whatever I have given you some formulas. So the first question is, if angle A is 90 degree, AB 12, AC. So first of all we have form of right angle triangles. These are the type of the questions. There are 4 questions, all are the different type. अगर आप ये 4 टाइप के क्वेश्चंस को सीख लेते हो तो 8.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करके और सेंड कर देना व्हाट्सएप में. नाउ दिस वन इज द एंगल A, इट इज 90 डिग्री. AB, B और C का पोजीशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी C यहाँ भी B हो सकता है, क्योंकि केवल एक चीज क्लियर है, दैट इज एंगल A इज 90 डिग्री. नाउ AB इज 12 सेंटीमीटर, AC इज 5 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल B. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. कौन सा एंगल निकालना है, अभी मैंने बात कर रहा था कि एंगल फाइंड आउट करना है. कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल B फाइंड आउट करना है. सो एंगल B पे हम लोगों ने फोकस कर दिया, साइड्स पता है. अब इसका व्हाट इज द सॉल्यूशन, BC इज ऑलरेडी 13 गिवन. अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि साइन B इज इक्वल टू व्हाट, तो अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने क्या बताया था, साइन इज अ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो which establish relation between perpendicular and hypotenuse. So how can we decide the hypotenuse? This one is 90 degree and this one is the opposite side, so this one is hypotenuse. Now which angle we are going to find out? That is the angle B. So angle B का opposite side कौन है, 5. So this one is the perpendicular. And अब बचा कौन लास्ट में, C. इसका opposite side क्या कहलाएगा, base कहलाएगा.
अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड एंगल सी, देन दिस वन इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द बेस एंड इट इज फिक्स्ड. 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा. तो साइन बी इज इक्वल टू व्हाट? 5/13. अगेन, क्योंकि वी नो साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? P/H. ठीक है, याद हो जाएगा धीरे धीरे फॉर्मूला. एक बार देखना, 2 बार वीडियो को देखना, याद हो जाएगा. cos B इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी 12/13. अब क्या तीसरा है? tan B इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 5/12. गॉट इट? अगेन cosec B, अब खुद बताओ cosec B क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि साइन का उल्टा कौन है? cosec. सो 13/5 इनवर्स है. cos का रिवर्स कौन है? sec B इक्वल्स टू 13/12 यानी कि B/H हो जाएगा. ओके, और फिर sec, उसके बाद cot B, दैट इज इसका रिवर्स क्या? B/P. B is what? 12 and P is 5. So this one is the answer of this. ठीक है, आपको इसी तरीका से एक एंगल पता होगा ट्रायंगल के अंदर कि 90 डिग्री है, तीनों साइड दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि एंगल बी निकालिए, एंगल सी निकालिए, व्हाटएवर. उसके अकॉर्डिंगली आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो उस पर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. दिस वन इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है. साइन ए इक्वल्स टू 3/5 and we have to find cos A and tan A. So first of all we form a right angle triangle. बच्चों मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग, अब देखो थोड़ा स्मार्टली काम करना चाहिए. देखो ए यहां रखने से ना दिमाग में डायरेक्टली लगता है कि ये अपोजिट है, इसलिए हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे. अब इसको बना दिया 90 डिग्री, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी. ओके, तो थोड़ा सा कन्वीनियंसी के लिए हम लोग इसको एंगल ए लिख सकते हैं. गिवन क्या है? दिस वन इज द गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/5. अब देखो यार, एक स्टेप्स दिमाग के अंदर चलना चाहिए. स्टेप्स क्या चल रहा है कि अगर साइन ए लिखा हुआ है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होगा. कीप इन माइंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द परपेंडिकुलर. अब यहाँ पे 3 नहीं लिखने पे, अब क्या होता है ना, टेक्निकली मैथमेटिक्स के टीचर इसको गलत कहते हैं क्योंकि रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 3k. ए क्या है? हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिख दिया? 5k. आप कैसे कहा कि सर आप कैसे जान गए? हम जानते हैं साइन थीटा एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. व्हाई इट इज परपेंडिकुलर? बिकॉज दिस एंगल इज ए और इसका अपोजिट साइड कौन होगा? परपेंडिकुलर होगा. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर. अब 3 को क्या लिख देंगे सर? 3k. इसको क्या लिख दिया? 5k. नाउ वन साइड इज लेफ्ट. तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस वी कैन फाइंड द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. इफ 2 sides are given, then using the Pythagoras in right angle triangle you can use Pythagoras. Pythagoras is known for you in class 6. From class 6 you have already studied about the Pythagoras theorem. Pythagoras क्या कहता है? Hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. यानी hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Now h square यानी कि 25k square, p 9k square and b square is this. So b square is equal to what? ये यहाँ करके माइनस हो गया. Then how much? 16k square. करेक्ट है ना? 16k square हो गया. So b is equal to what? 4k. ऐसे भी आप जानते हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25. दैट इज द, सो दिस वन इज 4k. नाउ वी कैन राइट द आंसर. सो अब हमारा क्या होगा? cos A, establish relation between base and hypotenuse. Base is what? 4k
hypotenuse is what? 5k, k cancel, so there is the 4/5. Again, tan A equals to perpendicular by base, so there is the 3k by 4k, k cancel, so there is 3/4. So there is the answer here. Okay, now the next question I'm going to discuss. It is very important question. टेस्ट में भी पूछा जा सकता है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ये आप घर में सॉल्व करना और एनसीईआरटी 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना. ओके, सो लेट अस सी. This one is the third type of the questions. Okay, now read carefully. In triangle OPQ, so we have to form a triangle O. Right angle, ये important चीज है. कहां देखोगे? Right angle at P. तो right angle at P. So this one is the Q. तो पहले एंगल के साइड्स का पोजीशनिंग हम लोगों ने कर लिया. अब हम लोग देखते क्या है. राइट एंगल एट P, सो P, और गिवन क्या है बच्चे? OP इक्वल्स टू 7. OP इज 7 सेंटीमीटर. OQ माइनस OP, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. अब देखो यार, थीटा कह रहा है या तो थीटा का मतलब किसी को भी थीटा ले सकते हैं, इसको और इसको कहीं भी, है ना. सॉरी, Q. सो दिस एंगल के बारे में बात हो रहा है. हाँ, इसको समझ लेना. इट इज नॉट थीटा, इट इज Q. साइन Q एंड कॉस Q. ओके, इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा. ये क्या होगा? बेस होगा. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक साइड पता है, दो साइड के बारे में मालूम नहीं है. मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि कभी भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आपको लिखना है तो पहले तीनों साइड्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है. ओके, सो हाउ कैन वी गेट इट? तो मैं सिंपल सा पाइथागोरस का हेल्प कर सकता हूं. वही एक फॉर्मूला हमारे लिए हेल्पफुल है. तो उसके अनुसार क्या होगा? OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यहां से अगर OQ निकालते हो मेरे भाई, तो OQ इज इक्वल टू व्हाट? OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ हो जाएगा. PQ इधर आ गया. ये तो तेरा गिवन है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे गिवन है. ठीक है, अब इस OQ के वैल्यू को आप यहां पुट करो. तो यहां पुट किया तो क्या किया? 1 प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर. A प्लस B का होल स्क्वायर, सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर. सो there is the PQ square, these two are cancelled here. Now we know the value of OP equals to 7. OP equals to 7. So 1 plus 2 PQ equals to 7 square. 7 square मतलब 49. So 2 PQ is equal to what? There is 48. So PQ square is equal to 24 centimeter. Now we know the PQ is equal to PQ equals to 24 centimeter, and after that we can easily find the hypotenuse. Okay, we can easily find hypotenuse. So अब देखो भाई, OQ तो दिया हुआ था. OQ is equal to 1 plus PQ, तो 1 है. ठीक है, PQ की वैल्यू कितनी निकली है? 24. सो देयर इज द 25. तो ये हमारा OQ इज इक्वल टू 1 प्लस 24, दैट इज 25. तो अब देखो भाई, पता चल गया 7, 24, 25, और निकालना क्या है? cos P. तो cos P के फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा? साइन थीटा, साइन Q निकालना है. तो साइन Q इज इक्वल टू
साइन क्यू क्यू ये है हमारा, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 7, सो देयर इज द 7। हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा 25। अगेन वी हैव टू फाइंड कॉस क्यू, सो कॉस क्यू इज इक्वल टू व्हाट, बेस। अब ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कौन बचा, यही हो गया, तो ये हो गया हमारा 24/25। सो इट इज वेरी इजी। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार क्विकली रिकैप कर लो। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल POP दिया हुआ है, और दिस वन पहले मैंने इसका सहारा लिया, इससे हमने OP का वैल्यू निकाल लिया, पाइथागोरस का यूज किया, OQ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, OQ को एक्सपेंड किया, A प्लस B के होल स्क्वायर में आया, कैंसल हुआ, यहां से PQ निकाला, PQ का वैल्यू 24 आ गया, और उसके बाद जैसे ही हमको PQ 24 मिल गया, 1 ऐड कर दिया, तो हमारा OQ मिल गया। हमारा टारगेट यही था कि तीनों साइड्स को पहले निकालो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट लाइन के बाद बता दे रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या कर रहा है, एंगल और साइड में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं साइन थीटा का, तो साइन थीटा क्या कर रहा है सर, साइन थीटा कर रहा है इस एंगल का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है इन दोनों साइड के साथ, बे परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के साथ। कॉस, तो इस टॉपिक के अंदर में आप इस क्वेश्चन को सेम टाइप का है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना। 8.1 एक्सरसाइज का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि establish relation between angle and side, and we have already discussed the 6 trigonometrical ratio: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. Okay, thank you. Okay boys, this one is the important questions. Try to understand. Okay, it is based on the similarities of the triangle. Okay, Q was have no idea about the similarities of the triangle, because you have already studied about only the congruency of the triangle. What is the condition for similarity of the triangle? Two triangles can be similar if the ratio of their sides are equal. Okay, then their each angles are equal. अगर मैं कह दूं AC by PR, AB by PQ and BC by PR, then we can say triangle ABC and PQR are similar. And that case, what is the result of it? Then if two triangles are similar, then their each angles are equal. Okay, that is the main concept here. Now the question is, if एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा है, सच दैट साइन B इक्वल्स टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. दैट इज आवर टारगेट. वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. सो वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटीज हियर. अब गिवन क्या है बच्चे, क्वेश्चंस के अंदर दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड होता है. क्वेश्चन के अंदर आंसर भी होता है और टारगेट यही होता है कि आप किस तरीका से आंसर को फाइंड आउट करते हो. यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन B इक्वल्स टू साइन Q, दैट इज गिवन, एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. तो साइन B, अब इस ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, ABC के अंदर आ जाओ. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जिस एंगल को निकालना है उससे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो सेट होगा. तो यहाँ एंगल B है, तो एंगल B का अपोजिट कौन होगा, परपेंडिकुलर. 90 का अपोजिट कौन होगा, हाइपोटेन्यूज. बचा कौन, वो बेस हो गया. तो साइन B इज इक्वल टू व्हाट, AC बाई AB. साइन Q इज इक्वल टू क्या हो गया, PR बाई PQ. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दैट AC बाई AB इक्वल्स टू PR बाई PQ. अब सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि हम लोग सिमिलरिटीज का सहारा ले रहे हैं, तो उसमें मैंने क्या बोला था, AC बाई PR होना चाहिए. तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, PR को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, AB को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिकली. तो हम लोग PR को नीचे ले आए, AB को ऊपर ले गए. अच्छा, रेशियो है तो उसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, दैट इज K. अब हमारा टारगेट क्या है कि AC बाई PR हो गया, AB बाई PQ हो गया. अब टारगेट है BC बाई QR लाना.
तो BC by QR कैसे लाएंगे? यूजिंग पाइथागोरस। BC इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर रूट अंडर एंड QR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइन रूट अंडर PR स्क्वायर। सो बोथ आर हियर। BC by QR लिखा, AB माइनस AC एंड रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखो भाई, यहां से अगर AB निकालोगे तो AB इज इक्वल टू क्या होगा? KPQ। AC इज इक्वल टू क्या होगा? KPR। अब यहाँ पे आपने लिखा है BC बाई QR, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। AB के जगह लिख दिया KPQ स्क्वायर, AC के जगह लिख दिया K स्क्वायर PR स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालें, नीचे में एज यूजुअल छोड़ देते हैं। K को बाहर निकाल दिया क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो बाहर हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो वैल्यू कितना बचा? K, यानी BC बाई QR भी K हो गया। अब देखो मेरे भाई, AC बाई PR, AB बाई PQ भी K है और BC बाई QR भी K है। तो सिमिलरिटीज का जो कॉन्सेप्ट था कि टू ट्रायंगल्स कैन बी सिमिलर इफ द रेशियो ऑफ देयर साइड मस्ट बी इक्वल। तो रेशियो ऑफ देयर साइड इक्वल हो गया। देखो AC बाई PR हो गया, AB बाई PQ हो गया और अभी हमने प्रूव कर दिया BC बाई QR। तीनों के वैल्यू K हो गए, तीनों के वैल्यू K हो गए। इसलिए ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर एंगल्स आर इक्वल। सो वी कैन से AC by PR, AB by PQ, BC by QR. Therefore, triangle ABC and PQR are similar. That means angle B is equal to angle Q. So it is the most important question. ये आपको NCERT के एग्जाम्पल में क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने 8.1 के अंदर जो इम्पोर्टेंट 3-4 टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चे। 8.1 एक्सरसाइज निकालोगे और उसको सॉल्व करोगे और अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप मैसेज करिए, मैं उसका फिर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ओके, थैंक यू बॉयज।